Hello everyone, I am Professor P.K. Garg. Today we are going to discuss redox reactions. Redox reaction, initially we must know what is meant by oxidation and what is meant by reduction. According to classical concept, the oxidation means the process in which the addition of oxygen or the removal of hydrogen or both of these process takes place. Similarly, reduction in which the addition of hydrogen or removal of oxygen takes place or both of these are takes place. This is a classical concept. This concept is the classical concept. According to the modern concept, oxidation means loss of electrons. Oxidation means loss of electron, whereas reduction means gain of electron. So the process in which the loss of electrons takes place is known as oxidation, whereas the process in which the gain of electrons takes place is known as reduction. And the process and the reactions in which both the processes goes simultaneously, those reactions are known as redox reactions. The reactions in which both the oxidation and reduction takes place simultaneously are known as redox reaction, and the redox reactions, according to their classification, the redox reaction are of two types. The redox reaction are of two types. One are known as direct redox reaction and other one are indirect redox reaction. One of them are known as direct redox reaction, whereas the other are known as indirect redox reaction. The direct redox reactions are the reactions in which oxidation and reduction takes place in same container. डायरेक्ट redox reaction बेटा वो होते हैं जिनमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन सेम कंटेनर में होती है. फॉर एग्जांपल, ये एक कंटेनर है जिसमें आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फिल कर लिया. कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फिल किया और उसमें एक जिंक की रॉड लगा दी. कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, उसमें जिंक की रॉड लगा दी. हुआ क्या, जो जिंक था उसकी ऑक्सीडेशन होनी शुरू हो गई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा, तो जो ऑक्सीडेशन हो गया. और जो कॉपर था उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए और वो कॉपर में चेंज हो गया. कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन किए और वो कॉपर में चेंज हो गया. सो दिस इज ऑक्सीडेशन, दिस इज रिडक्शन, एंड बोथ द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन सेम कंटेनर. दैट्स व्हाई this process is known as direct redox reaction. That's why this process is known as
direct redox reaction. In the case of indirect redox reaction, the oxidation and reductions takes place in different containers. In indirect redox reaction, oxidation and reduction takes place in different containers. For example, a container in which the solution of zinc sulfate takes place, and in the solution of zinc sulfate I have placed a rod of zinc so that there is no direct redox reaction takes place. In another beaker we have placed copper sulfate solution and in copper sulfate solution I have placed a rod of copper. Both are connected by a galvanometer. Galvanometer indicates the flow of electron, indicates the direction of the flow of electrons. This is galvanometer. For the completion of internal circuit कंप्लीट करने के लिए एक यू शेप ट्यूब जिसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन फिल्ड किया होता है किसी सॉल्ट का, उसको लगा दिया जाता है, एंड दिस यू शेप ट्यूब इज नोन एज सॉल्ट ब्रिज. दिस यू शेप ट्यूब इज नोन एज सॉल्ट ब्रिज एंड इट हैव टू फंक्शंस. दिस U shape tube which is filled with the saturated solution of any strong electrolyte have two functions. One of them is it completes the circuit, and the second one is it maintain the both the solution इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल. एक तो ये सर्किट कंप्लीट करती है, एक दोनों सॉल्यूशंस को ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करती है. होता इसमें वैसे है, जो पहले वाला बीकर है बेटा उसमें क्या हो रहा है, जो जिंक है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और जो सेकंड वाला बीकर है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है. तो पहले वाले बीकर में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और सेकंड वाले बीकर में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है. सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली चल रहे हैं. एक कंटेनर में से ऑक्सीडेशन हो रही है तो दूसरे कंटेनर में रिडक्शन हो रही है. दिस इज द रिडॉक्स रिएक्शन, एंड द सेल्स which are made up from indirect redox reaction are known as electrochemical cells. These cells are known as electrochemical cell. We must know the representation of electrochemical cell. For the representation of electrochemical cell, first of all we will write the oxidation, then double line we will write the reduction. बेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए पहले ऑक्सीडेशन लिखा जाता है, फिर डबल लाइन, उसके बाद रिडक्शन लिखा जाता है. ये डबल लाइन सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है. ये डबल लाइन सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है. जैसे जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ तो जिंक 2 पॉजिटिव बना, मैंने ऐसे लिख लिया, एंड द डबल लाइन कॉपर 2 पॉजिटिव का रिडक्शन हुआ और कॉपर बना. दिस इज नोन एज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. सो दिस इज द जस्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द redox reaction. In redox reaction we have to calculate the
oxidation number of different element, either they are alone or they have in compound formation with some other elements। तो redox रिएक्शन में जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर हमें अलग अलग एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आने चाहिए। फॉर एग्जांपल द कंपाउंड इज H2SO4। एक कंपाउंड है हमारे पास जिसका नाम है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, एंड वी हैव टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, और हम सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है 1, 2 हाइड्रोजन है 2 हो गया। सल्फर का ऑक्सीडेशन हमने निकालना है +X लिख लिया। एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है बेटा -2, तो 4 हैं -8 हो गया, दिस इज 0। x - 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +6। So in sulfuric acid, sulfur have oxidation number +6. So there are many examples by which we can find the oxidation number of different element in a compound। ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं बेटा जिसमें हम किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर एक कंपाउंड में फाइंड आउट कर सकते हैं। बट उसके लिए कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या है बेटा, ध्यान देना जरा, कुछ चीज़ें नोट करनी पड़ेगी। जैसे हमने कभी भी सपोज करना है हाइड्रोजन का, लिथियम का, सोडियम का, पोटाशियम का, रुबीडियम का, सीजियम का, अमोनियम का, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। अगर हमने कभी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनका +2 है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइनाइड, एसीटेट, इवन नाइट्रेट -1 है। ऐसे ही ये है अमोनिया है, वाटर है, कार्बोनाइल है, इनका ऑलवेज 0 होता है बेटा। ऐसे ही सल्फेट, कार्बोनेट, ऑक्सीजन, ऑक्साइड, ऑक्सलेट, इनका -2 होता है। एक बात याद रखनी है बेटा, ऑक्सीजन -2 होता है एक्सेप्ट 2 केसेस। 2 केसेस को छोड़ के बाकी सभी केसेस में जो ऑक्सीजन है वो -2 होता है। एक तो बेटा H2O2 कभी भी पर ऑक्साइड आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल H2O2, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है इन द केस ऑफ पर ऑक्साइड। और दूसरी बात, अगर हमारे पास आ जाए OF2 ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, इसमें ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 है। इन 2 केसेस को छोड़ के बाकी मैक्सिमम केसेस में जो ऑक्सीजन है इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 है। तो ये चीज़ें तो चाहिए अगर हमने किसी भी एलिमेंट का एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। बट इसके अलावा एक रूल और है बेटा, अगर कोई भी एटम अपनी एलिमेंटली स्टेट में पड़ा है, मतलब सिर्फ अकेला ही पड़ा है, अकेला हाइड्रोजन पड़ा है, जिंक पड़ा है, कॉपर पड़ा है, नाइट्रोजन पड़ा है, ऑक्सीजन पड़ा है, अकेला कोई भी हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं। उन 118 एलिमेंट्स में से कोई भी एलिमेंट अगर पड़ा है अकेला तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज 0 है। और नंबर 2, अगर कोई एलिमेंट अपनी ही
मॉलिक्यूलर स्टेट में पड़ा है। बेटा अपनी ही मॉलिक्यूलर स्टेट मतलब सिर्फ उसने अपने साथ ही बॉन्ड बनाया है, जैसे H2 है, N2 है, O2 है, S8 है, N4 है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ऐसे इनको बोलते हैं अगर कोई एलिमेंट अपनी ही मॉलिक्यूलर स्टेट में पड़ा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 है। अगर कोई एलिमेंट अपनी एलिमेंट्री स्टेट में है या अपनी ही मॉलिक्यूलर स्टेट में है तो जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा वो 0 ही कंसीडर किया जाएगा। अब हम 1-2 फाइंड आउट करके देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर इन्हीं के बिहाफ पे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू फाइंड द oxidation number of certain compounds. For example, FeCN6 3 नेगेटिव। अगर ऐसा कोई कंपाउंड है और हमने आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है तो जिसका फाइंड आउट करना है उसे x मान लो। एक Cn का -1 है, ये 6 Cn लगे हुए हैं तो ये -6 हो गया, इज इक्वल टू नॉट 0 जो ऊपर टोटल चार्ज -3 है, -3 x इज इक्वल टू +3। इट मीन्स आयरन के ऊपर जो टोटल चार्ज है वो +3 आ गया। अब सपोज हमारे पास कंपाउंड है Pb3O4, हम Pb का यानी कि लेड का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो लेड 3 लगे हैं 3x, इसे हम x ले रहे थे क्योंकि आयरन अकेला पड़ा था। इसमें लेड मॉली एटम्स 3 हैं तो 3x, एक ऑक्सीजन का -2 है, -8 0 x इज इक्वल टू 8/3 तो इसमें लेड के ऊपर 8/3 आ गया बेटा। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 हो सकता है, वो माइनस हो सकता है, वो प्लस हो सकता है, वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है। आपने ऑक्सीडेशन नंबर को वैलेंसी से कंफ्यूज नहीं करना। वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी, जैसे वैलेंसी नेगेटिव में नहीं होती, वैलेंसी फ्रैक्शन में नहीं होती, बट जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो एलिमेंट कौन से कंपाउंड में है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर। आफ्टर लर्निंग द कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटा भी, हमने केमिकली इक्वेशन बैलेंस करना सीखना है by using oxidation number method. Balance chemical equation by oxidation number method बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इससे सिर्फ इक्वेशन बैलेंस नहीं होती और भी कुछ चीज़ें पता लगती हैं। एक सिंपल सी इक्वेशन लिख रहा हूँ बेटा, जैसे मैंने लिखा जिंक प्लस HCl इट गिव्स जिंक क्लोराइड प्लस H2। ये हमारे पास एक इक्वेशन है जिसको हम बैलेंस करना चाहते हैं बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे बेटा, हम सभी के ऊपर उनका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे भी। सभी का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है। जैसे जिंक अकेला पड़ा है तो 0 है, इधर हाइड्रोजन भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, ये भी 0 है। उसके बाद हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज है तो क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है। यहाँ क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है तो जिंक के ऊपर +2 चार्ज है। हमने सभी के ऊपर उनका ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिया।
हाइड्रोजन का +1 होता है, क्लोरीन का -1। अब आप यहाँ पे देखो, अगर एक क्लोरीन का -1 है और इसको हम x मान लें तो ये +2 आ जाएगा। अब ध्यान देना, जिंक यहाँ पे 0 था, यहाँ पे +2 हो गया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। इट मीन्स जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है, तो हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन बाय 2। यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 1 था और वहाँ पे जाके जे 0 हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, तो जे रिडक्शन हो गई। यहाँ पे हम लिखेंगे रिडक्शन बाय 1, क्योंकि 1 से 0 हुआ तो 1 कम हुआ, तो हमने रिडक्शन बाय 1 लिख दिया। जहाँ 0 से 2 हुआ तो 2 बढ़ गया, इसलिए हमने ऑक्सीडेशन बाय 2 लिख दिया। अब एक बात और हमने यहाँ सीखनी है, अगर जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है, इक्वेशन बैलेंस करने से पहले हमने ये बात सीखनी है बेटा, जिसकी भी ऑक्सीडेशन हो रही है इट मीन्स वो रिड्यूसिंग एजेंट है। बेटा जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिसकी रिडक्शन हो रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों डिफरेंट बातें हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसिंग एजेंट ये दोनों सेम बातें हैं बेटा। तो जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है इसीलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और HCl की रिडक्शन हो रही है इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बहुत बार ऐसे आ जाता है भी हमें कोई इक्वेशन दी होती है और पूछा जाता है भी इसमें से किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है, तो इसी बिहाफ पे भी किसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, किसका कम हो रहा है, उससे हमें पता चलता है भी किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है। और उनके उल्ट हम बता देते हैं बेटा भी जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसकी रिडक्शन हो रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इसके बाद इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है। अब जिंक की वजह से 2 का चेंज आया और HCl की वजह से 1 का चेंज आया, तो इसकी वजह से 2 का चेंज आया तो 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसकी वजह से 1 का चेंज आया उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, मतलब जिंक प्लस 2HCl इट गिव्स, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। बाय चांस ये इजी इक्वेशन था और यहीं पे बैलेंस हो गया, अदरवाइज इसके बाद हमने पहले ये फर्स्ट स्टेप होता है इस मेथड के द्वारा, ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद हमने स्टेप वाइज करना होता है, जैसे जो हैवी एटम्स है उनको पहले बैलेंस करना है और जो स्मॉलर एटम्स हैं उनको बाद में, और ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन हमने सबसे बाद में बैलेंस करना है। बैलेंसिंग के दौरान अगर कभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहे तो हमारे पास चॉइस है, हम किसी भी साइड पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर सकते हैं, किसी भी साइड पे हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर सकते हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखनी है, जिस तरफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने हैं उसी तरफ हमने H और OH नेगेटिव ऐड नहीं करने। हमारे पास चॉइस है बेटा। एंड में जाके क्या हो जाता है, कई बार एक तरफ ऑक्सीजन या हाइड्रोजन इवन नंबर में है और दूसरी तरफ ऑड नंबर में है, बैलेंस नहीं हो रही, तो हम H2O लगा के बैलेंस कर सकते हैं। बट अगर H2O लगाने के बाद कहीं हमें H या OH लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो जिस तरफ अगर हमने रिएक्टेंट वाली साइड पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया है तो हम प्रोडक्ट वाली साइड पे H पॉजिटिव या OH नेगेटिव नहीं लगा सकते। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिडॉक्स रिएक्शन। इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको ये समझ आ गया हो, अच्छा लगा हो, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स बेटा।